Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. So, first of all, we start with Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today is our second lecture of Animal Physiology 2. This lecture is for MSc Zoology 2nd and BS Zoology 6th semester. Today is Friday, 10th April 2020. So, yesterday we have studied about that what will we study in this course, that what are the components of the course, and we have studied that why do we study physiology, कि फिजियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या हमें फ़ायदा है फिजियोलॉजी का इन ह्यूमन लाइफ. देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाई डू वी स्टडी दिस कोर्स, स्पेशली जो एनिमल फिजियोलॉजी 2 का कोर्स हम पढ़ेंगे. तो उसमें हमने क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ रहे हैं हम. Then we have discussed physiology, that what is physiology, that is the branch of biology that deals with the study of functions of different parts of the body. Then we had discussed yesterday coordination, and coordination in living organisms की coordination simply क्या है कि मिलजुल के काम करना, कि different parts और organs of human body जो हैं वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं और इसी को हम क्या करते हैं, coordination कहते हैं. और जब भी हम कोई coordination का study करते हैं या कहीं भी coordination हो रही होती है as a team work के तौर पे काम हो रहा होता है, तो उसमें लाजमी कोई ना कोई principal या boss होता है. And in human bodies that principal organ that is controlling the whole mechanism of coordination, it is brain. So now we move to coordination in human body. So in humans there are two types of coordination systems. The one is the nervous coordination, which is under nervous control, and second is the chemical coordination, which is through different types of chemicals. Now, nervous coordination and chemical coordination. The nervous coordination is controlled by nervous system. The nervous system has further two parts: central nervous system and peripheral nervous system. The central nervous system has brain and spinal cord. That central nervous system is the principal organ which controls the coordination in the body. The peripheral nervous system consists of nerves, that is cranial nerves, we have spinal nerves, it has sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, autonomic nervous system, and so much. The chemical coordination is that type of coordination which is controlled through chemicals, like certain types of molecules or proteins, or we can say hormones, or we can also say enzymes. So any type of chemical involving or playing its role in coordination is known as a chemical coordination. So in human body, both coordination systems, neither nervous coordination nor chemical coordination can work alone. They both work together to perform different functions. Now, what type of functions they perform in the body? Like, these two perform systems of coordination work together to perform different functions. Either, for example, let me show you, like if you are going to grasp or hold a glass. अब आप अगर इसमें देखें तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स. लाइक इसमें हमारे पास मस्कुलर सिस्टम भी काम कर रहा है, यू हैव मसल्स, वी हैव स्केलेटल सिस्टम, जो हमारे पास बोन्स वगैरह हैं वो भी इसमें, अगर स्केलेटन सिस्टम ना हो तो वी कैन नॉट ग्रैस्प द ग्लास, हम ग्लास पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते. वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो तब भी हमारे पास हम ये प्रॉपर फंक्शन, पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारा क्या है कि ब्रेन कंट्रोल करे. अगर ब्रेन की तरफ से ऑर्डर नहीं आएगा मोटर नर्व्स के थ्रू आपके मसल्स को, तो कभी भी हम ग्लास को होल्ड नहीं कर सकते, हम नहीं उठा सकते. एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम वही केमिकल कोऑर्डिनेशन का है कि हमारे पास केमिकल्स के थ्रू जो है मैसेज क्या होता है, ब्रेन से डिलीवर होता है. तो डिफरेंट सिस्टम्स आर वर्किंग टुगेदर, एक ही काम कर रहे हैं, हम सिर्फ गिलास उठा रहे हैं और उस एक काम में हमारे पास इतने बहुत सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं. एंड दिस ऑल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. ये सारा कुछ जो हो रहा है वो ब्रेन के कंट्रोल में है. सॉरी फॉर दैट. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी काम करना है, लाइक आप अगर गिलास उठा रहे हैं तो उसमें आपके मसल्स भी इन्वॉल्व हैं. अगर मसल्स ना हो तो आप गिलास नहीं उठा सकते. आपकी बोन्स वगैरह, स्केलेटल सिस्टम भी इन्वॉल्व है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम भी
इन्वॉल्व हैं। ये तो वो सिस्टम्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को या फॉर एग्जांपल गिलास को उठाते हैं। ऐसे भी सिस्टम्स हैं जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, लाइक आपके पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। लाइक हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह रोल प्ले कर रहा है। आपको रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, कि हमारे पास जो ब्रेक डाउन होती है फूड की टू रिलीज एनर्जी, तो उसको हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब हमने जब ये ग्लास पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब ये जो हमने गिलास पकड़ा हुआ है इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू आएगी? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब हम गैसेस एक्सचेंज इनहेलेशन करते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं, उससे ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हैंड में आएगी, हैंड में फूड की ऑक्सीडेशन होगी और हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी और तभी हम गिलास पकड़ने के काबिल होंगे। अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना हो तो तब भी हम गिलास नहीं पकड़ सकते। तो अब आप देखेंगे ये सारे सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। और कौन सा है वो फंक्शन? कि गिलास उठाना। एंड दिस ऑल सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन विच इज अ ब्रेन। ठीक है, एक और सिस्टम है जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इट इज आल्सो इन्वॉल्विंग इन दैट फंक्शन, वो भी इसमें कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। अब वो इनडायरेक्ट रोल है और ये मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह गिलास उठाने में अपना किरदार अदा कर रहा है या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो पहला तो ये हमने पढ़ा दैट द बोथ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लाइक कोई भी फंक्शन हो उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी मिलजुल के काम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलजुल के काम करते हैं। जो सेकंड द सेकंड थिंग इज टू मेंटेन और रेगुलेट होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। होम्योस्टेसिस हम किसे कहते हैं? होम्यो मीन same, stasis mean state. To homeostasis is simply defined as to maintain anything of the body at a constant state. किसी भी चीज के लेवल्स को, किसी भी चीज को कांस्टेंट लेवल पे रखने का नाम होम्योस्टेसिस है। लाइक आपकी बॉडी में जो भी चीज है उनका एक नॉर्मल लेवल है। लाइक आप ग्लूकोज का लेवल देख लें, हमारे पास कितने 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर है। इसी तरह अगर हम कैल्शियम का देखें तो 30 नैनोग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है। इसी तरह जितने भी मिनरल ऑयंस हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर, उनका एक थ्रेशोल्ड लेवल है, नॉर्मल लेवल है। ठीक है, अगर उस नॉर्मल लेवल से उनके लेवल्स हाई हो जाएं या लो हो जाएं तो हमारे पास डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट डिसऑर्डर्स काज होते हैं। तो हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं या ऐसे सिस्टम हैं जिसको हम होम्योस्टेटिक सिस्टम कहते हैं। एंड दैट होम्योस्टेटिक सिस्टम maintain that particular thing at their normal levels. लाइक होम्योस्टेसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में एफएससी में कि हमारे पास थर्मो रेगुलेशन है कि जिसमें वो टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है जिसमें साल्ट और वाटर की क्वांटिटीज मेंटेन रखी जाती हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्यों मेंटेन रखते हैं? बिकॉज द एंजाइम वर्किंग इन आवर बॉडी दे वर्क ऑन अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो वो पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा तो तभी हम जो हैं क्या कर सकते हैं कि हमारे एंजाइम्स प्रॉपर काम करेंगे। अदर अगर वो हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा तो एंजाइम विल नॉट वर्क प्रॉपरली और हमारे पास जो है डिजीजेस प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह जो ऑस्मो रेगुलेशन है या वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन हम क्यों नॉर्मल रखना चाहते हैं? बिकॉज लेवल्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। कि अगर आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन के लेवल में या उसके होम्योस्टेसिस में कोई भी मसला हो तो आपके ब्लड प्रेशर में मसला आ सकता है। तो इसकी एग्जांपल हम अगर लेंगे किस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन मिल के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं या रेगुलेट करते हैं बॉडी में। सो सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास, लाइक ये मैंने एक ग्राफ बनाया। फॉर एग्जांपल अगर हम थर्मो रेगुलेशन देखें दैट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नाउ the normal body temperature of our body is 37 degrees centigrade. It's like 37.4 degrees centigrade. So that is the temperature at which the enzymes of your body work properly. It is the optimum temperature for all the enzymes, like वो respiration के enzymes हैं या digestion के enzymes या कोई भी enzymes हैं, वो इस 37.4 पे बहुत efficiently काम करते हैं।
अब हम कंडीशंस देते हैं कि किस तरह आपके जो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन मिलके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। हमारे पास एक स्टिमुलस है कि अगर आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई हो जाए, ठीक है, यू नो दैट वी हैव एनिमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं कि जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और एनवायरनमेंट में टेम्परेचर के चेंज के साथ उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज ना हो। तो हमारा 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है और इसको इस टेम्परेचर पे मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हमारे पास अब एक स्टिमुलस है, अगर हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड से, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई हो गया तो क्या होगा कि सबसे पहले थर्मो रिसेप्टर्स विल सेंस कि हमारे पास रिसेप्टर किसे कहते हैं, विच रिसीव एनी स्टिमुलस। तो चूंकि ये टेम्परेचर का स्टिमुलस है तो कौन रिसीव करेगा, जो आपकी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स हैं। दीज थर्मो रिसेप्टर्स receive the information or gather the information about a high temperature in the surroundings या environment में जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो थर्मो रिसेप्टर्स उसको फील करेंगे। These thermoreceptors then send message from या थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स टू द ब्रेन। अब थर्मोरिसेप्टर से जो है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेज है वो ब्रेन तक आएगा। कौन सा मैसेज है कि टेम्परेचर बाहर का इंक्रीज हो गया है। ब्रेन में क्या होता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मींस डिसीजन ले रहा होता है ब्रेन, या हम सोच रहे होते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, किस तरह ज़्यादा हो गया, हम कह रहे हैं कि लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया और अब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपको गर्मी लग रही है। अब ये इसी के थ्रू थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं इसको सेंस करेंगे, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन में। ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी, किस तरह प्रोसेसिंग होगी, आप सोचेंगे कि भाई गर्मी आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप क्या करेंगे कि जाके अगर यूपीएस है तो उसका बटन ऑन करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है यूपीएस, यूपीएस भी ख़त्म है तो कोई जनरेटर वगैरह है, आप उसका सोचेंगे, वो भी नहीं है तो आप फिर बाहर जाएँगे, शायद बाहर हवा चल रही हो। तो ये अब प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब ब्रेन ऑर्डर देता है 2 चीज़ों को, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ऑर्डर जाता है, आइदर या तो मसल्स के पास जाता है या फिर ग्लैंड्स के पास जाता है, ठीक है। अब अगर मसल्स के पास जाता है, मसल्स के बाद फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेसिंग ये हो गई कि भाई आप जाओ और जनरेटर ऑन करो, तो फिर आपका जो ऑर्डर है ब्रेन ऑर्डर भेजेगा मसल्स को, और मसल्स जो टांग के मसल्स हैं और आर्म्स के मसल्स हैं वो जाएंगे और फंक्शन करेंगे और आप जनरेटर ऑन करेंगे, ठीक है। और जनरेटर जैसे ऑन करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक थी हमारे पास। पहले हम देखते हैं ये स्टिमुलस जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जब लो होगा तो हमारे पास क्या होगा कि थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं बॉडी के वो उसको फील करेंगे। आप बाहर बैठे हैं और धूप चली गई है तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर क्या हो रहा है, धूप जैसे जा रही है, शाम हो रही है तो सर्दियों में टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो ये थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजेंगे ब्रेन में। ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी, ब्रेन का ऑर्डर या तो मसल्स में जाएगा या ग्लैंड में, एंड इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेसिंग के मैसेज कहाँ पे जाएगा। तो अगर वो आप सोच रहे हैं कि भाई मैं उठूँ अंदर जाऊँ और जाके स्वेटर वगैरह पहन लूँ या रज़ाई या कंबल में घुस जाऊँ, तो ब्रेन ऑर्डर देगा मसल्स को, आप उठ के आएंगे और क्या करेंगे, वार्म क्लोथ्स वगैरह पहनेंगे। जैसे आप गर्म कपड़े पहनेंगे आपका टेम्परेचर वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक मेंटेनेंस है, कोऑर्डिनेशन करते हो आप। अगर हमारे पास आप वहीं बैठे हैं, ठीक है, आप बाहर बैठे हैं और आपने ये डिसाइड किया कि बस यहीं बैठा रहता हूँ। आप अंदर जाने का या कोई वार्म क्लॉथ्स पहनने का कोई डिसीजन नहीं लेते और वहीं बैठे रहते हैं, तो तब क्या होगा कि प्रोसेसिंग में ब्रेन प्रोसेसिंग के बाद ऑर्डर देगा किसको, ग्लैंड को। हमेशा ब्रेन का आपने सुन पढ़ा होगा कि मोटर न्यूरॉन्स कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम ब्रेन टू अफेक्टर्स एंड अफेक्टर्स विल ऑलवेज बी आइदर मसल्स या ग्लैंड। तो ग्लैंड को मैसेज जाएगा, ठीक है। और ग्लैंड कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इस ऑर्डर के रिस्पांस में सिक्रीट करेगा टीएसएच। टीएसएच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस टीएसएच देन goes to thyroid gland and stimulate the thyroid gland to secrete हार्मोन थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन जैसे ही सिक्रीट होगा, इट प्रोड्यूसेस शिवरिंग इन द बॉडी,
और जब भी बॉडी में शिवरिंग हो रही होती है इट मीन्स कि वर्क डन हो रहा है, और शिवरिंग के नतीजे हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, और इस हीट की वजह से वो जो बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा था वो हीट प्रोडक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता रेस करेगा और हमारी बॉडी का टेम्परेचर वापस से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें, सो दिस इज नर्वस सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन जो है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे दो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायरोक्सिन। सो इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल के जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन आपस में मिल के काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे हैं या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हाई हो गया है तो फिर अगेन सेंस करेंगे थर्मोरिसेप्टर्स कि अगर 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर हाई हुआ तो थर्मोरिसेप्टर्स क्या करेंगे, उसको सेंस करेंगे। देन दीज थर्मोरिसेप्टर्स सेंड मैसेज टू ब्रेन थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, और फिर ब्रेन में आके फिर वही चीज़ है कि प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग क्या मतलब कि या तो आप कहेंगे कि मैं फ़ैन ऑन कर लूँ या एसी ऑन कर लूँ, आपको गर्मी लग रही है तो ब्रेन ऑर्डर देगा मसल्स को, मसल्स जैसे ही ऑर्डर आएगा मसल्स मूव करेंगे, आप उठ के जाएंगे और फैन और एसी ऑन करेंगे। जैसे ही फैन और एसी ऑन होगा दी हैव कूलिंग इफेक्ट, और वो कूलिंग इफेक्ट से हमारा टेम्परेचर वापस से डिक्रीज होके 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। अब अगर कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्रोसेसिंग के दौरान आपने हाँ भाई लाइट भी नहीं है, एसी और पंखा नहीं चालू चल सकता, ठीक है, यूपीएस नहीं स्टार्ट हो रहा, वो ख़त्म है चार्जिंग उसकी, जनरेटर है नहीं, या फॉर एग्जांपल पेट्रोल नहीं है, फाइनली बस आखिर में मजबूरी ये है कि कोई और रास्ता नहीं है, आपने वहीं बैठे रहना है। तो तब प्रोसेसिंग में जब कोई मसल को नहीं जाएगा मैसेज, तो फिर मैसेज जाता है ग्लैंड्स को, लाइक मैंने कहा। लेकिन इस टाइम ये ग्लैंड कौन सा होगा, स्वेट ग्लैंड होगा, एंड दीज स्वेट ग्लैंड्स देन प्रोड्यूस स्वेट, और फिर ये स्वेट जो है ये स्वेट हमारे बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और फिर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन हो जाता है। सो ये हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन आपस में मिल के क्या कर रहे हैं कि हमारे पास होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं या बॉडी टेम्परेचर या थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ हाई वाला देखें तो ये सेंसरी न्यूरॉन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, फिर इसके बाद मोटर न्यूरॉन्स होंगे, वो भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास स्वेट क्या है, इट इज ए केमिकल। इसके अलावा और भी केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शायद सुना हो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हम आगे पढ़ेंगे भी सही, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो दो न्यूरॉन्स हैं यानी कि दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स, वो आपस में फिजिकली कनेक्ट नहीं होते, दे ऑलवेज हैव अ गैप, उनके दरमियान जो है थोड़ा सा गैप होता है, और उस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स हैं, तो ये दो न्यूरॉन्स जो है इनके दरमियान एक गैप होता है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं, और इस गैप में ये फिजिकली अटैच नहीं होते, तो क्या होते हैं ये केमिकल सिक्रीट करते हैं। दिस केमिकल इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर देन कैरी मैसेजेस टू द न्यूरॉन। तो अब ये जो हमारे पास नर्वस सिस्टम का चीज हम देख कह रहे हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स में के थ्रू मैसेज गया नर्वस सिस्टम तक, तो वहां पे हर न्यूरॉन में केमिकल्स के थ्रू ही मैसेज जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि जिस जहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन आपस में मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल टू सेल कम्युनिकेशन। नाउ फॉर कोऑर्डिनेशन, कि अगर सेल्स ने आपस में कोऑर्डिनेट करना है या मिल के काम करना है तो सेल डिफरेंट सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक आर्मी की टीम है या कोई भी टीम है और वो किसी शहर में किसी मिशन पे आए हैं और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में फैल गए, अब अगर उनके दरमियान कोई मींस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा देन दे विल कैन नॉट वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन। तो जब उनमें जब
कोई मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कभी भी नहीं कर सकते। तो अगर सेल्स ने आपस में कोऑर्डिनेशन में या मिलजुल के काम करना है तो उनमें कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीकों के थ्रू जो सेल्स हैं, 2 सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस दैट इज़ सेल टू सेल कम्युनिकेशन। In order to coordinate with one another, cells communicate with each other. Cells क्या करते हैं? आपस में communicate करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो जब भी कोई सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है तो एक सिक्रेटिंग सेल होता है हमेशा कि जो बात करना चाह रहा है, और एक टारगेट सेल होता है कि जिसको उसने अपनी बात या अपना मैसेज पहुंचाना है। सिक्रेटिंग सेल वो है कि जिसने मैसेज देना है, और टारगेट सेल वो सेल है कि जिसको उसने मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, तो सिक्रेटिंग सेल को हम ग्लैंड भी कहते हैं। ग्लैंड हमने पीछे भी पढ़ा, तो ग्लैंड को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं एनी सेल or a group of cells that secrete something. Any cell or group of cells that secrete something. कि अगर कोई सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और वो कुछ सिक्रीट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लैंड। तो हमारे पास सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि हमारे पास ग्लैंड हो या वो सेल जो मैसेज देने वाला है, और दूसरा टारगेट सेल होता है कि जो मैसेज रिसीव करता है। अभी जो मैसेज आता है, ये मैसेज आता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, सर्टेन केमिकल्स की फॉर्म में ये मैसेज आता है, और ये मैसेज सिर्फ उसी सेल पे के पास जाके एक्ट करता है जो हमारे पास टारगेट सेल होता है। हर सेल पे ये मैसेज जाके एक्ट नहीं करता, बिकॉज जो टारगेट सेल होता है उसके बॉडी पे या सेल मेम्ब्रेन, सेल सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर हम किसे कहते हैं? कि जो रिसीव करें। तो ये वो वाले रिसेप्टर्स हैं कि जो क्या करेंगे, ये जो केमिकल की फॉर्म में मैसेज आया उसको रिसीव कर सके। अब वो सेल्स कि जो इस केमिकल को या इस केमिकल के रिसेप्टर रखते हैं तो वो तो टारगेट सेल होंगे, अदरवाइज वो सेल्स के जिनकी सरफेस पे इस केमिकल के रिसेप्टर मौजूद नहीं है, सो दीज सेल्स आर नॉट अ टारगेट सेल फॉर दैट केमिकल, या उसको वहां पे उस सेल तक मैसेज उसने नहीं पहुंचाना। लाइक हमारे पास इसने एक मैसेज पहुंचाना है इस सेल तक, तो ये वो केमिकल सिक्रीट करेगी कि जिसका टारगेट सेल या जिसके रिसेप्टर इस सेल पे तो मौजूद हैं लेकिन इस सेल पे मौजूद नहीं है। तो ये जैसी केमिकल रिलीज करती है वो जाके टारगेट सेल पे जो रिसेप्टर होता है उस पे जाके अटैच होता है, और ये रिसेप्टर के साथ जैसे ही अटैच हो जाता है तो हमारे पास इस सेल का मैसेज, जो ग्लैंड का मैसेज है, वो टारगेट सेल में पहुंच जाता है, और इसी को हम कहते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन। और ये जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस, कि अगर सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं होगी तो हमारे पास कभी भी सेल या डिफरेंट फंक्शन सिस्टम्स जो हैं या ऑर्गन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर सकते। ठीक है, और हमारे पास ग्लैंड क्या है कि सेल्स सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट समथिंग, किसी कोई भी चीज, कैसी भी चीज सिक्रीट कर रहा है तो हमारे पास क्या है? ग्लैंड है। तो हमारे पास मोस्टली बॉडी के तमाम सेल्स जो हैं वो ग्लैंड है। बहुत कम ऐसे सेल्स हैं जो कुछ सिक्रीट नहीं करते, अदरवाइज मोस्टली सेल्स जो हैं वो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, इसीलिए हम बॉडी के तमाम सेल्स को ग्लैंड कह सकते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो वी हैव वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमारे पास चलो कम्युनिकेशन तो प्रेजेंट है, हमारे पास सेल टू और डिफरेंट सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उसमें से एक ग्लैंड सेल होता है जो कि मैसेज जिसने पहुंचाना होता है वो केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल जाता है टारगेट सेल पे, और टारगेट सेल की सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है। उसके रिसेप्टर के साथ जैसे ही वो केमिकल अटैच होता है तो टारगेट सेल को मैसेज मिल जाता है। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन है कि जिससे थ्रू जो है सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। फर्स्ट इज द ऑटोक्राइन वे ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड इज पैराक्राइन, थर्ड इज एक्सोक्राइन, एंड द फोर्थ इज एंडोक्राइन। ये 4 डिफरेंट वेज में सेल्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में भी इनकी स्टडी करते हैं। सो the very first way of communication is the autocrine way of communication। और autocrine way of communication कैस कौन सा होता है? कि it is a type of communication in which the same cell act both as a gland and a target cell। कि अगर एक सेम सेल है
वो उस मैसेज को या वो केमिकल रिलीज भी कर रहा है, एज अ ग्लैंड एक्ट कर रहा है, और वो टारगेट सेल भी वही सेम सेल है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोक्राइन वे ऑफ कम्युनिकेशन। या ऑटोक्राइन वे ऑफ कम्युनिकेशन क्यों होता है? बिकॉज एक सेल को क्या जरूरत है कि भाई ये खुद ही रिलीज कर रहा है और फिर खुद ही इसको रिसीव कर रहा है। मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब क्यों जरूरी है ऑटोक्राइन वे ऑफ कम्युनिकेशन? लाइक आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स भी। उसमें अगर प्रोटीन्स की हम फॉर्म्स डिस्कस करें, हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन की इनर जो साइटोप्लाज्मिक सरफेस है वहां पे, और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो आउटसाइड सरफेस पे, जो सेल मेम्ब्रेन की जो एनवायरनमेंट के साथ सरफेस है वहां पे अटैच होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब हमारे पास और दूसरे हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो बिल्कुल सरपास किए होते हैं आपके पास सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है? सेल से बाहर, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी बैरूनी सरफेस पे। अब फॉर एग्जांपल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जाहिर बात है उनका कोई ना कोई फंक्शन होगा, और वो फंक्शन ऐसे खामखा तो वो मेम्ब्रेन पे नहीं पड़े ना, कोई ना कोई सेल के अंदर उस प्रोटीन का फंक्शन है, इसीलिए उसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे रखा हुआ है। अब क्या होता है कि हमारे पास तमाम प्रोटीन हर वक्त एक्टिवेटेड नहीं होते। जबकि किसी प्रोटीन का कोई फंक्शन का टाइम आता है तो तभी वो एक्टिवेट किया जाता है उसको, वो फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है? डीएक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, लाइक अगर हम देखें आपका एंजाइम है पेप्सिन, तो जो पेप्सिन है स्टमक में, वो हर वक्त एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही आप फूड खाते हैं, रिलीज होता है और एक्टिवेट किया जाता है पहले उसे, और फिर वो फूड की डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो सेम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और इसका कोई ना कोई फंक्शन लाजमी होगा सेल में, और ये हर वक्त भी वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। अब ये फॉर एग्जांपल इनएक्टिवेटेड स्टेट में है, और सेल को ज़रूरत हो गई इस प्रोटीन के फंक्शन की कि ये फंक्शन परफॉर्म करे। तो अब सेल ने क्या करना है? पहले इस प्रोटीन को एक्टिवेट करना है। जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये प्रोटीन काम नहीं करेगा। तो सेल क्या करता है? वो केमिकल रिलीज करता है जो इस प्रोटीन को जाके इन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। तो वो क्या करता है? केमिकल बाहर रिलीज करता है, बिकॉज ये बाहर की सरफेस में मौजूद है। अंदर की सरफेस पे होता तो वहीं से वो जाके एक्ट कर लेता, लेकिन चूंकि सेल के बाहर प्रेजेंट है ये प्रोटीन, तो क्या होगा कि वो उस केमिकल को रिलीज करेगा। जैसे रिलीज करेगा, एक एक्ट एज अ ग्लैंड, कि उसने कुछ सिक्रीट किया, और जो भी कुछ सिक्रीट करेगा वो ग्लैंड कहलाएगा। और फिर वो केमिकल क्या करेगा? जाके उसी सेल पे जो प्रोटीन है उसके साथ, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा, और वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एक्ट करेगा रिसेप्टर के। और अब टारगेट सेल भी कौन सा है? यही सेम सेल जिसने सिक्रीट किया था, वही अब टारगेट सेल है। तो ऐसे वे ऑफ कम्युनिकेशन को हम ऑटोक्राइन वे ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, कि अगर सेल ने क्या करना है कि ऐसे प्रोटीन को एक्टिवेट करना है कि जो सेल की आउटर सरफेस पे मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, तो वो ऐसा केमिकल रिलीज करता है और एक्ट करता है एज अ ग्लैंड। वो केमिकल जाता है सेल की, सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे, उस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो पार्टिकुलर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उसके साथ अटैच होता है, उसको एक्टिवेट करता है, और वो जैसे ही प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है वो अपना पार्टिकुलर फंक्शन सेल में परफॉर्म करता है जिसकी जरूरत थी। ठीक है, लाइक इसके अगर हम एग्जांपल देखें एटोक्राइन वे ऑफ कम्युनिकेशन की, कि लाइक अगर आपके फॉर एग्जांपल आप ही का घर है और बाहर बेल का स्विच खराब हो गया। ठीक है, तो क्या होगा कि आप घर के अंदर से बाहर निकलेंगे, और वही आप क्या करेंगे? अपना ही स्विच, आप फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसका काम है बिजली का और वो स्विचेस ठीक करता है, तो वो क्या करेगा? अगर उसके अपने ही घर की बेल का स्विच खराब हो गया, अगर अंदर कहीं खराब होगा वो अंदर ही रहते हुए उसको ठीक कर लेगा, लेकिन बेल का स्विच खराब हुआ तो वो घर से बाहर निकलेगा, अपनी ही बेल का स्विच ठीक करेगा और फिर वापस आ जाएगा। तो यही सेम चीज है कि हमारे पास सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, उसका फंक्शन रिक्वायर्ड है सेल को, और वो प्रोटीन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो सेल ने उसको एक्टिवेट करना है, तो सेल ऐसा केमिकल रिलीज करता है, बाहर खारिज करता है सेल से, और एज अ ग्लैंड एक्ट करता है, और वो केमिकल जाके उस पार्टिकुलर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ अटैच होता है, और क्या करता है? वो उसको एक्टिवेट करके करता है, और वो प्रोटीन फिर अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है, इंटरल्यूकिन 1 सिग्नलिंग इन मोनोसाइट्स।
सॉरी। अच्छा, इंटरल्यूकिन 1 सिग्नलिंग इन मोनोसाइट। मोनोसाइट्स एज यू नो कि हमारे पास शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे ब्लड सेल्स में जो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। तो हमारे पास उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 टू 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हैं, एजिनोफिल्स हैं। तो ये मोनोसाइट्स में जो इंटरल्यूकिन 1 सिग्नलिंग है, इंटरल्यूकिन हमारे पास एक केमिकल है, ल्यूकिन निकला है ल्यूकोसाइट से, और इंटरल्यूकिन 1 ये एंटीबॉडीज एक किस्म की इम्यून रिस्पांस में सिक्रीट होता है ये केमिकल। अब क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है ना, तो वो एक ही वक्त में सिग्नल जनरेट करता है। तो वो स्टिमुलस या सिग्नल आके मोनोसाइट्स पे इंटरल्यूकिन 1 की सिग्नलिंग को क्या करता है, इनिशिएट करता है। बिकॉज वो ब- कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, वो इसके रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ। अब इंटरल्यूकिन 1 बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन अब इसको कंटिन्यूअसली बनते रहना है। लेकिन सिग्नल एक ही दफा आया था, बार बार सिग्नल नहीं आ रहा। तो फिर क्या होता है कि इंटरल्यूकिन 1 जो सेल बना के सिक्रीट करता है, उसमें से आधे वो अपना फंक्शन या इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने चले जाते हैं, और जो आधे हैं वो वापस से मोनोसाइट्स की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर इंटरल्यूकिन सिग्नलिंग, वो इंटरल्यूकिन 1 वापस जाके उस रिसेप्टर पे अटैच होता है और इंटरल्यूकिन 1 की सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। फिर और ज्यादा आधे उधर इम्यून सिस्टम की तरफ चले जाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने, और जो आधे हैं या उसमें से कुछ जो है वो वापस से इंटरल्यूकिन 1 के मोनोसाइट्स की सरफेस पे जो इंटरल्यूकिन 1 के रिसेप्टर हैं उस पे अटैच होके और इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन को इनिशिएट या स्टिमुलेट करते हैं। तो ये तो हमारे पास था ऑटोक्राइन वे ऑफ कम्युनिकेशन, और आज के लेक्चर का हमारे लिए इतना काफ़ी है। होप आप लोग को समझ आई होगी। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोगों ने उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कल का लेक्चर जैसे ही मैं रिकॉर्ड करूंगा तो शुरू शुरू में मैं उसके जो है जो क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर रिकॉर्ड कर लूंगा, अगर कोई क्रिटिकल क्वेश्चन हुआ। अगर सिंपल आंसर हुआ तो वहीं पे मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अच्छा, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, डेली में एक क्वेश्चन भी आप लोगों को उसी लेक्चर के अंदर से एक क्वेश्चन पूछा करूंगा जिसको आपने कमेंट सेक्शन में इसको आंसर देना। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाट इज द पॉसिबल रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कोऑर्डिनेशन। कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका कोऑर्डिनेशन में क्या रोल है। आपका जो जो भी आपके पॉइंट्स हैं या जिसका जो भी सोच आती है, आप अपने दिमाग से की तरफ से लिखें। नेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। बस जो आपके दिमाग में उसका बेस्ट आंसर है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता है, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर देने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड अल्लाह हाफिज़।